So we are discussing about this, right? Okay. So I was telling you that plants grow only in some portions of their whole body, right? They grow downwards, they grow upwards, and they go laterally. Laterally, means the branches, right, that come out of the tree, they grow in that way. So this where is the apical? Okay, apical हम लोग जो upwards, we don't say upwards, we say it apical part. Okay, the topmost part of the plant. This one is the apical part. Okay, then comes the intercalary. Okay, this is the intercalary one, and the lateral. This is the lateral one. Okay, this is the lateral one. Okay, so let us see. These are the meristems. These are the tissues located, meristematic tissues located in a plant. Okay, so let us see one by one. Okay, but before that, well, I just like to see what they're saying here. New cells produced by this meristem are like those of the meristem itself. But as they grow, their characteristics slowly change and become differentiated component of other tissues. Okay, here they're saying, in this line they're saying that पहले, ठीक है, जो मेरिस्टेम है, ठीक है, वो जहां से ग्रो किया है ये उधर का ही दिखता है. Okay, they look like this there from there itself, right? But when they grow and become mature, their characteristics change. ठीक है, characteristics change होने के बाद they become differentiated into various components or into other tissues. Okay, yes, let us see. देखो, एपिकल जो मेरिस्टेम है, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स है, और इसका जो लेंथ है ना, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट. मतलब ये ऊपर, ये ऊपर का और नीचे का तुम्हारा व्हाट इज से व्हाट इट इंक्रीजेस, ऊपर और नीचे का तुम्हारा ग्रोथ करता है. ठीक है, ग्रो ऊपर और नीचे का ग्रोथ करता है. और द ओके the girth the girth of the stem or root increases due to the meristem. ठीक है, गर्थ मतलब किसी को अंदाजा है इस लाइन में क्या बोलना चाहता है? The girth of the stem or root increases due to the lateral meristem intercalary. Okay, ये पार्ट में क्या बोलना चाहता है, किसी को कुछ आइडिया है? Anything there? What do you think what will be the meaning of girth? Some means thickness. Yes, गर्थ का मीनिंग होगा यहाँ पे थिकनेस. ठीक है, जो तुम्हारा बार्क का जो बार्क का पोर्शन है ना, वो बार्क का पोर्शन को हम लोग बोलेंगे गर्थ. ठीक है, उसको बोलेंगे गर्थ. सो बोल रहा है कि द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट, ठीक है, उसका जो मोटाई होता है, ठीक है, वो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हाट? लेटरल मेरिस्टेम. उसको हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं. लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं, सॉरी, लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग बोल सकते हैं कैम्बियम. कैम्बियम, सो रिमेंबर दिस वर्ड, कैम्बियम. ठीक है, और रहा okay. और रहा now the intercalary meristem. So have you ever studied before this chapter? Have you ever studied? So no. No, you have not studied. तो intercalary meristem तुमको पता नहीं होगा. Intercalary meristem ना, it is, देखो, if you can see here, you see in the book, देखो जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा जो ग्रीन पोर्शन है ना, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, यहाँ पे देखो एक और एक बैंड ऑफ ग्रीन है, दिस इज द इंटरकलरी मेरिस्टेम. और लेटरल देखो, लेटरल ऐसा करके बैंड है. देखो लेटरल क्या कर रहा है, देखो, इफ यू सी, इट इज इंक्रीजिंग व्हाट यू सी,
it is increasing the girth, मतलब the Yeah. what say the size of the trunk, ठीक है? So Hmm. okay, तो intercalary meristem कहाँ पे रहता है? It is seen just near the node, ठीक है? Just near the node. नोड क्या होता है? एक प्लांट का नोड क्या होता है? किसी को आइडिया है? प्लांट का नोड क्या है? क्या होता है? Actually, there are these people. My mom, she used this. What is it? Tuna, you know? What is tuna? Tuna called? You know what is tuna? You don't know, no? Yes, sir. Means at during evening, no? Your parents they don't use this one. Coconut. What to say? Yeah. These things, no? What is called? I don't know. Yeah. Okay. Do you know what are these knots? Knots तुम लोगों को पता है? Anybody? Not knots ना? हाँ, you don't know ना? देखो, No. knots ना, you'll see जहाँ पे ना तुम्हारा वो फॉर्म होता है, जहाँ पे तुम्हारा ऐसा ये ब्रांचेस निकलता है ना, जहाँ पे ब्रांचेस निकलता है वहाँ पे you'll see something, some dot type thing. I'll show you it. I'll show you. Then you'll understand much properly. Just look at this. Knot of a plant. 1 second. What is this? सबको दिखाई दे रहा है? Okay. Yes, sir. Knot of a plant, you see, huh? The best part will be. इसको देखो पहले. ये फोटो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? दिस फोटो दिखाई दे रहा है? Yeah. Yes. नॉट को किसको बोल रहा है? दिखाई दे रहा है? Can you see which portion is called Yes, knot? sir. Yeah. Yeah. Hmm. Okay. Yeah, I'll show you another picture. Live picture. This one you see. Note किसको बोलता है? Look at this picture. इसको नोट बोल रहा है ये जगह को. ठीक है? Okay. Now you got it. Node of a plant कौन सा होता है? Yes. You understood. Okay. So Yeah. now let us look at this one. Okay. So intercalary meristem कहाँ पे होता है? नोड्स पे होता है, राइट? ये नोड्स पे होता है. एपिकल वाला कहाँ पे होता है? एपिकल वाला एपिकल वाला मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पे होता है? टिप में या रूट्स में, राइट? इंटरकैलरी कहाँ पे होता है? इट इज अंडर नोड्स, राइट? No. नाउ द लास्ट वन दैट इज लैटरल कहाँ पे होता है? इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द ट्री. ट्रंक में होता है, राइट? द ट्रंक ऑफ द ट्री, द ट्रंक ऑफ द प्लांट. ठीक है? समझ में आया? Yes. Yeah. ओके, चलो. Cells of meristematic tissues are very active. They have dense present thin cellular walls and permanent nuclei. Okay, ये चीज याद रखना. ये जो cells of meristematic tissue है, meristematic tissue का जो cells है ना, इसके पास क्या होता है? जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, इसका cells के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, this cytoplasm is very dense, मतलब बहुत ही घना है. The cytoplasm liquid is very thick, very thick. And जो इसका सेलुलोज वॉल है ना, प्लांट्स का, तो जो प्लांट्स का वो होता है, सेल वॉल होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, है कि नहीं? जो इसका सेल वॉल होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, राइट? ये सेलुलोज वॉल या सेल वॉल क्या होता है? बहुत ही पतला होता है. दे आर वेरी थिन. दिस आर थिन. एंड द न्यूक्ली, जो न्यूक्ली है इसका, ओके, न्यूक्ली क्यों बोल रहा है? यू कुड हैव सेड न्यूक्लियस, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्ली एंड न्यूक्लियर? न्यूक्लियस एंड न्यूक्ली. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्ली? किसी को पता है? देखो, न्यूक्ली होता है न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म. न्यूक्लियस जो है
that is the singular form. Okay, English बता रहा हूँ English. And nuclei is the plural form. समझ में आया? So ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन फीचर्स क्या है? ये साइटोप्लाज्म उसका बहुत डेंस होता है, इसका सेल वॉल बहुत ही थिन होता है, और इसका न्यूक्ली भी क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है, मतलब बहुत क्लियर होता है, क्लियर न्यूक्ली होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है ना? और एक चीज याद रखना, इसमें क्या नहीं होता है? वैक्यूल्स, जो वैक्यूल्स होता है ना, वैक्यूल्स जो थोड़ा जो स्पेस होता है ना, गोल गोल स्पेसेस होता है ना, that vacuoles is not Yes. present in this meristematic tissues. So I'll tell you one thing, do one thing, ये जो meristematic tissues है, इसके ऊपर तुम लोग आज एक नोट्स बनाओ, ठीक है? इसको नोट बना के don't write much, don't write much, पहले लिखो तुम you write first what is meristematic tissue, what is this, right? Then you write types of it, कितना टाइप्स का होता है, राइट? तो वो टाइप्स कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है? एक एक टाइप्स का तुम थोड़ा थोड़ा लिखना, ठीक है? व्हाट, ये चीज हमेशा रखना, याद रखना, व्हाट, व्हेन, नॉट व्हेन, व्हाट, वेयर, हाँ, व्हाट और वेयर का आंसर हमेशा रखना फॉर एवरी टाइप, ठीक है? क्या चीज है वो, एंड कहाँ पे मिलता है, ओके? और इट्स फंक्शन, ओके, इट्स फंक्शन, Yeah. Yes. okay. Now let us look at after types. Okay, oh sorry, before types you have to write, I'm sorry, before types you have to write, after you have written what is a meristematic tissue, उसके बाद तुमको लिखना है meristematic tissue का characteristics क्या है, characteristics लिखना है in point. Okay, write in point, characteristics, write in point, then ये तुम्हारा एक proper note बन जाए. जैसे draw, ठीक है? फर्स्ट से फिर से बताता हूँ, look at this, what is a meristematic tissue, ठीक है? उसको, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है? मैथमेटिक टिश्यू को ड्रॉ कर लेना, ठीक है? उसके बाद तुम लिखना इसका टाइप्स क्या है, और हर एक टाइप का तुम लिखना व्हाट, वेयर एंड फंक्शन. समझ में आया? मेक ए परफेक्ट नोट Yeah. फॉर दिस, मैंने परफेक्ट नोट फॉर दिस, ठीक है? Yeah. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा. ओके, अंकित इज हियर. सी अंकित, सागरिका, गीतांजलि, रूपरेखा, I want to say, Ankit, Yeah. if you're unresponsive, you can leave the class. Okay, if you're not responsive, जो भी यहाँ पे response नहीं करेगा, they can leave the class simply. And I'm telling you one that I forgot to say in person. If anybody is not attending the class and they're in the YouTube video or they're doing the WhatsApp class, then they have to submit their what's assignments per every week. Okay. चलो, so it is only for students those who are not attending online class. Okay. Okay. Yeah. So you have understood this. कि मैंने जैसे सागरिका को बोला था, सागरिका, ऋषिकेश, निष्ठा is not done, so I'll take her out of the class. So it is useless if a person, if they're not paying it. So it is helping or not. So where you have made, I understood you have made good, but you have to उसको थोड़ा पॉलिश करना होगा. The way you have made, you have to polish it. So उसको पॉलिश करके उसको और क्लिप्स बनाना होगा, मतलब कम वो शब्दों में तुमको सब चीज बताना होगा, है ना? So let us try for this. Remember always, आंसर छोटा होने से वो नहीं होता है, गुड नहीं होता है. आंसर होना चाहिए क्रिस्प. जब क्रिस्प होगा तब वही अच्छा लगेगा. जो लेस खाते हो, वो लेस अगर डैम्प हो गया तो खाने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, राइट? सो इन द सेम वे, yeah, that's the thing. Your answer should be crisp. Crisp. This answer अच्छा होता है. Okay.
ओके हाँ हेलो মই ক্লাছত লৈ আছো মই চাম এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব हाँ ओके तो मैं क्या बता रहा था let us look at this next issue so before starting plant tissue कितना टाइप का है मैंने तो ये तुम लोगों को नहीं बताया है ना प्लांट टिश्यू कितना टाइप का है हैव यू डिस्कस्ड नहीं बताया सो प्लांट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओके परमानेंट टिश्यू ठीक है Permanent. और क्या कुछ कुछ बता रहे थे और उसके बाद एनिमल टिश्यू में आता है तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू स्क्वामस टिश्यू Muscular. मस्कुलर टिश्यू है ना इतना ही तो आता है और सॉरी नर्वस टिश्यू स्क्वामस उसके अंदर ही आता है नर्वस टिश्यू एंड Yeah. मस्कुलर टिश्यू ओके सो प्लांट्स में दो ही है परमानेंट और हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ठीक है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है इसको अच्छी तरह से तुम लोग काइंडली इसको लिखना ठीक है जो भी नोट्स बनाओगे इसको अच्छी तरह से लिखना ठीक है ओके नाउ Yeah. कम्स द परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू का काम क्या है देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम था ग्रो करना राइट ग्रो करना राइट Yeah. मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम का मतलब ही होता है डिवाइड राइट तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू Yeah. डिवाइड राइट दे यूज्ड टू डिवाइड वेरी फास्ट वेरी सून ओके लेकिन वही सेल्स जब वही टिश्यूज जब डिवाइड नहीं हो पाता उसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू समझ में आया उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू Yes. सेम चीज Tissue. वो जब डिवाइड नहीं कर पाता इट लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड ओके और एक स्पेसिफिक रोल ले लेता है ठीक है देन इट इज ए परमानेंट टिश्यू ओके इसमें क्या होगा ये जो प्रोसेस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू ओके ओहो ये मैंने तुमसे शेयर नहीं किया ना लुक एट दिस सो ये जो प्रोसेस है ना ये जो प्रोसेस है process of getting converted from meristematic tissue to permanent tissue okay इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन किसमें क्यों इस प्रोसेस में क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप ले लेता है ये क्या क्या लेता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या लेता है एक परमानेंट शेप लेता है एक परमानेंट शेप ले लेता है ना परमानेंट शेप ले लेता है एक परमानेंट साइज ले लेता है ना एक साइज ले लेता है ठीक है एक फंक्शन ले लेता है ओके एक फंक्शन ले लेता है ओके गॉट इट तो ये तीन चार काम जब होता है Yes. एंड देन इट बिकम्स अ परमानेंट टिश्यू ओके ये तीन काम होने के बाद देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ओके तो समझ में आया व्हाट इज डिफरेंशिएशन ओके Yeah. डिफरेंशिएशन Yes. का काम क्या है इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस परमानेंट टिश्यूज ओके ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बनता है ना सो डिफरेंशिएशन का काम ही यही है कि टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू ओके जिसका स्पेसिफिक पर्पस रहेगा ओके अभी देखते हैं ओके द डिफरेंस ओके क्या था ओके सेक्शन ऑफ सिस्टम हाँ ओके लेट अस सी ये जो परमानेंट टिश्यू है ना इट इज ऑफ टू टाइप्स व्हाट आर दे देयर सिंपल परमानेंट टिश्यूज ओके एंड
complex permanent tissue. I suppose complex permanent tissue है क्या? And complex permanent tissue. तो ये किस चीज का फोटो है? ये एक स्टेम का फोटो है. ओके, इस स्टेम में तुम देखोगे यू कैन सी इन स्टेम, ये जो फ्लोएम है ना, ये जो फ्लोएम है, इसको यहाँ पे ये दिखाया गया है. ये जो पेरेन्काइमा है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है. कोलेनकाइमा दिखाया गया है. सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एपिडर्मिस यहाँ पे दिखाया गया है. और दिस इज द क्यूटिकल. क्यूटिकल क्या होता है? व्हाट इज द क्यूटिकल ऑफ ए स्टेम? किसी को पता है व्हाट इज द क्यूटिकल ऑफ ए स्टेम? Sir, no idea. नहीं, क्यूटिकल ये बता पता सर। नहीं. ओके, गीतांजलि, Sir, कुछ no आइडिया idea. है? नो आइडिया. Sir, no idea. ओके, क्यूटिकल क्या होता है? एक एक फिल्म, एक लेयर होता है, ठीक है, जो तुम्हारा लिप्स या यंग शूट्स को कवर करके रखता है. ओके. हाँ, तुम लोगों ने उसको लाव लाव पात खाया है? लाव पात को क्या बोलता है? पंपकिन लिप्स, पंपकिन का प्लांट का लिप्स खाया है? खाते हो घर में? Yeah. डू यू ईट Yeah. इट? या. व्हेन जो उसका जो यंग शूट्स होता है ना, यंग स्टेम जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करके वहां से एक लेयर निकाल लेते हैं, राइट? Yeah. Yeah. यू हैव सीन वो लेयर. Yes. दैट लेयर इज द क्यूटिकल. गॉट इट? Oh, Yeah. या, दैट इज द क्यूटिकल. ओके. mm, सो यहाँ पे जो जाइलम है, जाइलम शायद यहाँ पे दिखाई नहीं है. ये पोर्शन, just this portion they have shown, this portion only, this portion. Okay, so okay, we can we'll discuss about it much later, but let us see what is a simple permanent tissue. ठीक है? mm, A few layers of cells within the epidermis are generally simple permanent tissues. ठीक है? बोल रहा है कि जो एपिडर्मल लेयर है ना, दिस इज द एपिडर्मल लेयर. दिस, ये कौन सा बोल रहे हो? ये कौन सा बोल रहे हो? यहाँ पे तुम लोग को अच्छे से ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द एपिडर्मल लेयर. जो ब्राउन कलर का जो सेल्स है ना, दिस एपिडर्मल Yeah. लेयर. उसके ऊपर वाला जो लेयर है वो है क्यूटिकल. ओके, दिस थोड़ा डार्क में देखो, थोड़ा डार्क में जो है, दैट इज mm, क्यूटिकल. ओके, उसकी क्यूटिकल के नीचे जो है, दिस इज द, सॉरी, जो ब्राउन कलर का सेल्स दिखाई दे रहा है तुमको, दैट इज द Yeah. एपिडर्मिस. ओके, तो बोल रहा है कि just below the epidermis there are a few layers of cells. They are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most simple permanent tissue. Okay, parenchyma कहाँ पे है? यहाँ पे है. Parenchyma is the most simple permanent tissue. मतलब इसके नीचे जो cells, जो tissues मिलेगा तुमको, they are permanent. They are simple permanent tissue. तो उसमें से पेरेन्काइमा का एग्जांपल उसने लिया है. ये सबसे कॉमन और कॉमन सिंपल टिश्यू है. इसमें क्या होता है? इस पेरेन्काइमा टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या रहता है? ओके, ये कंसिस्ट करता है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, ओके, विद थिन सेल वॉल्स. इसका सेल वॉल जो है वो थिन होता है ना, जस्ट लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसका सेल वॉल थिन होता है, बहुत ही पतला होता है. और इसका ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है. इसका मतलब अभी तक कोई स्पेशलाइजेशन नहीं लिया, मतलब इसका कोई डेफिनेट काम नहीं लेता. ये डेफिनेट टिश्यू में, किसी काम वाला टिश्यू में, जैसे हम लोग का बॉडी में क्या होता है, जो स्टोमक का टिश्यू दूसरा होता है, उसका काम क्या है? हजम करने का ही काम है. हार्ट के टिश्यू का काम क्या है? वो सिर्फ क्या नाम है, हम लोग का ब्लड पंप करेगा. ठीक है, वैसा ही इसका अभी तक क्या नाम है, कुछ डेफिनेट पर्पस या डेफिनेट स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ. ठीक है? ओके, दे आर लिविंग सेल्स. ठीक है, दे आर लूजली अरेंज्ड मतलब तुम देख रहे हो, तुम इफ यू आई रिमूव ऑल दिस, तुमको दिखाई देगा. कैन यू सी स्पेसेस इन बिटवीन टू सेल्स? दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में तुमको स्पेसेस दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द स्पेसेस? लुक एट द बुक प्रॉपर्ली. Yes. या, इसका मतलब वो लूजली पैक्ड है. अगर वो टाइटली पैक्ड होता ना, तो इसके बीच में कोई स्पेसेस नहीं होता.
ठीक है, ओके, ओके। और इस टिश्यू का जनरली क्या काम होता है, ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है, फूड को स्टोर करता है, ओके। इंटरसेलुलर, वही चीज बोल रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पीसीज क्या होता है, सेलुलर, सेल के दो चीज होता है। हैव यू एवर नोन व्हाट इज इंट्रा एंड इंटर, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर, किसी को पता है? No, No, sir. no, sir. ओके, अगर मैं सपोज मैं बिजनेस कर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने सवेरे पैसा लगाया, ठीक है, और शाम को मैंने निकाल लिया, वो हो गया इंट्राडे, एक ही दिन में मैंने ट्रेडिंग किया। अगर मैंने आज लगाया, मैंने 2-3 दिन बाद या कल निकाला, तो दैट विल बी इंटरडे, 1-2 दिन बाद निकालता है, ठीक है। दैट मीन्स जब एक चीज के अंदर जो चीज होता है, तो कुछ हो रहा है एक चीज के अंदर, ये चीज तुम्हारा हम लोग का स्टेट भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है ना, तो होगा सपोज हम लोग का जो असम स्टेट ट्रांसपोर्ट है, वो स्टेट के अंदर काम करता है, तो होगा ये इंट्रा इंट्रा, ठीक है, इंट्रा स्टेट। अगर वो वेस्ट बंगाल भी जाता है, फिर ठीक है, फिर बिहार भी जाता है, देन इट विल बी डिफरेंट स्टेट्स, राइट, तो इट विल बी इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर सेलुलर मतलब दोनों, दो सेल्स के बीच में बोल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट दो सेल्स के बीच में या सेल्सों के बीच में, ओके, Yes. ओके। और Yes. उस सिचुएशन में ये इसके पास क्लोरोफिल भी है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है ना। जब ये पेरेन्काइमा के पास क्लोरोफिल होगा और ये फोटोसिंथेसिस करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरेनकाइमा, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, ठीक है। पेरेन्काइमा हम लोग को पता है क्या क्या काम है, ये थिन वॉल होता है, ठीक है, इसका वो क्या नाम है, सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होता है ना, और ये लूजली पैक्ड होता है। बट जब इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और इसके ये फोटोसिंथेसिस भी कर पाएगा, देन दिस कॉल्ड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा तुम देखो ऊपर में है कोलेनकाइमा, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ होता है पेरेन्काइमा जो बड़ा बड़ा सेल्स है, यहाँ पे देखो कोलेनकाइमा समवट टाइटली पैक्ड ना, उसके बीच में स्पेस नहीं है, देखो यू कैन सी अबव, है ना, okay. In Yeah. aquatic plants large air cavities are present in parenchyma to help them float। ये parenchyma का काम क्या है, ये since इन सेल्सों के बीच में if you can see, यहाँ पे क्या होता है, स्पेस है, देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, because of these spaces this parenchyma helps the plant to stay afloat। जैसे लोटस का प्लांट तुमने देखा है ना, लोटस का प्लांट का जो पत्ता होता है ये फ्लोट करता है ना, ओके, Yeah. ओके। Yes. तो टाइप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स को क्या बोलते हैं, जिसके पास बहुत लार्ज लार्ज कैविटीज होता है पेरेन्काइमा सेल्स के बीचों में, तो उस टाइप ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स में जो पेरेन्काइमा है उसको बोलेंगे हम लोग एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे इसको, एरेनकाइमा, Parent. क्योंकि एयर एयर देखो इसमें क्या क्या चीज है, देखो एयर, पेरेन्काइमा का एनकाइमा, ठीक है, एयर जो है एयर वर्ड से लिया है, तो एरेनकाइमा, ठीक है। तो समझ में आया इतना तक? अभी तक हम लोग Yes, ने sir. तीन टाइप के टिश्यूज पढ़ा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, Yeah. समझ में आया सबको ये तीनों? Yes, sir. Yeah. The flexibility of plants is due to another permanent tissue, कोलेनकाइमा। Oh, this is क्लोरेनकाइमा, राइट? Oh, yeah. क्लोरेनकाइमा में ये नाम में तुमको देखो यहाँ पे है क्लोरोफिल का क्लोर, ठीक है, एनकाइमा तो ठीक ही है, एनकाइमा भी पीछे है, पेरेन्काइमा का एनकाइमा है, लेकिन क्लोरोफिल का क्लोर आका आया ना, तो इसलिए इसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं, ओके। नाउ आई वाज सॉरी, आई वाज टेलिंग यू अबाउट कोलेनकाइमा, बट इट्स नॉट कोलेनकाइमा, इट इज क्लोरेनकाइमा। कोलेनकाइमा Yeah. क्या होता है, ओके, ओके, क्लोरेनकाइमा क्या होता है, क्लोरेनकाइमा
होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। ये एक परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट्स को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है तो क्या होता है, ये प्लांट्स का टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स उनको पता है, डू यू नो व्हाट इज टेंड्रिल्स, डू यू नो व्हाट इज टेंड्रिल्स, एनीबॉडी नोस व्हाट इज टेंड्रिल्स, So no. टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स क्या No, होता sir. है, wait a second, this is Gitasri only na, who texted me, or is Rubrekha, Rubrekha sir. ओके। टेंड्रिल्स होता है, तुम लोगों ने वो लाव का पत्ता देखा है ना, लाव का पत्ता, मैंने जो पंपकिन का जो लीफ है वो कैसे ऊपर जाता है, वो उसके साइड में एक ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का गोल गोल वो निकलता है कि नहीं, गोल 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 छोटा छोटा Yeah. धागा जैसा, I'll show you but okay, tendrils of pumpkin, ये दिखाई दिया तुम लोग को, समझ में आया कौन सा चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, देखो देखो ये दिस यू हैव सीन, Yeah, yeah. या दिस इज द हाँ, टेंड्रिल, हाँ. इसको टेंड्रिल्स बोलते हैं, सो Oh, टेंड्रिल्स, दिस आर टेंड्रिल्स, एंड इस ये किससे बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा, Colon. कोलेनकाइमा, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स, ठीक है, टेंड्रिल्स और स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स, जो क्लाइंबर्स है ना, क्लाइंबर्स प्लांट्स है ना, वो क्लाइंबर्स प्लांट्स का तुम देखोगे जो टॉप पोर्शन होता है, दे आर वेरी सॉफ्ट, लुक एट दिस, लुक एट दिस वन, लुक एट दिस वन, ये इसका टॉप पोर्शन है, this top portion is this, okay, you cannot differentiate between the tendrils and top portion, तो जो top portion है वो भी बहुत flexible होता है, okay, so Yeah. अभी 5 मिनट है, ठीक है, so ये क्या करता है, ये जो tendrils और tendrils होता है, ये क्या करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वो प्लांट को सपोर्ट देता है ना, तभी वो प्लांट ऊपर जा पाता है ना, तो the tissue in this leaf stalk below the this leaf stalk below the epidermis, जो ये कोलेनकाइमा है, इफ यू सी द डायग्राम, एकदम तुम्हारा एपिडर्मिस के नीचे है, देखो, कैन यू सी दिस कोलेनकाइमा इज जस्ट बिलो द, जो एकदम टाइटली पैक्ड है ना, जो टाइटली पैक्ड सेल्स है वही कोलेनकाइमा है, ठीक है, ओके Yeah. ओके, so whenever I teach you, please keep your book with you because it will help you more, ठीक है, okay, Yeah. so okay, the cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners, very little intercellular, मैंने बोला ना, ये पैरेन्काइमा से थोड़ा टाइटली पैक होता है, इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है इसमें कम रहता है, ओके, ये है irregularly thickened at the corners, तुम देखोगे इसका कॉर्नर्स में irregular, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये irregularly thickened मतलब irregularly मोटा है, irregularly मोटा है, कहाँ पे, कॉर्नर्स में, ठीक है, समझ में आया, Yeah. और ये सेल्स क्या होता है, एलोंगेटेड होता है, एलोंगेटेड मतलब लंबा, ठीक है, लंबा लंबा Yeah. होता है, दिस सेल्स है लंबा, ठीक है, यू कैन Yes. सी यू जस्ट लुक एट दिस, ये जो कोलेनकाइमा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये लंबा है सेल्स, ओके, जिसका जो कॉर्नर है ये थिक होता है, और देन इरेगुलर ठीक होता है, और जो इसके बीच का सेल्स का स्पेस है, दे आर वेरी लिटिल, ओके ओके, सो इतना तक सबको समझ में आया, सो व्हाट यू विल डू टुडे, Yes. you make the notes for meristematic tissue, make it very nicely, okay Yeah. okay, और कुछ प्रॉब्लम हो तो YouTube